सेल्स रिटर्न बुक। अब देखेंगे एक इलस्ट्रेशन के थ्रू कि इन सभी बुक्स में एंट्री किस तरह से होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट कर लो, इलस्ट्रेशन 2। उसके बाद 4 बुक्स के फॉर्मेट बना लो, परचेजेस बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। परचेजेस बुक को सेल्स बुक का फुल पेज फॉर्मेट बना लो, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न बुक के 10-10 लाइंस के बना लो। कॉलम्स का ध्यान रखना, परचेज बुक में और सेल्स बुक में इनवॉइस नंबर कॉलम आएगा, परचेज रिटर्न में उसकी जगह डेबिट नोट नंबर, सेल्स रिटर्न बुक में क्रेडिट नोट नंबर। परचेज बुक में और परचेज रिटर्न बुक में डिटेल्स के बाद नेक्स्ट कॉलम की हेडिंग होगी कॉस्ट, लेकिन सेल्स बुक और सेल्स रिटर्न बुक में उसकी हेडिंग होगी वैल्यू। ठीक है, परचेज रिटर्न बुक में इनपुट जीएसटी के साथ लिखेंगे क्रेडिट, क्योंकि रिवर्स करते हैं रिटर्न के टाइम पे। ऐसे ही सेल्स रिटर्न बुक में आउटपुट जीएसटी के साथ लिखेंगे डेबिट। क्वेश्चन में जो ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं उसके अकॉर्डिंगली परचेज बुक में कॉलम्स बनेंगे डिटेल्स, कॉस्ट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, फ्रेट एंड टोटल। सेल्स बुक में डिटेल्स, वैल्यू, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी, टोटल। परचेज रिटर्न में डिटेल्स, कॉस्ट, इनपुट आईजीएसटी, क्रेडिट, टोटल। सेल्स रिटर्न में डिटेल्स, वैल्यू, आउटपुट आईजीएसटी, डेबिट एंड टोटल। ये सब बना लो, फिर स्टार्ट करते हैं सर। Up to where have you written? Written the question and made the formats? No, sir. ठीक है, कर लो, बता देना जब हो जाएगा।
Up to where now? लिख लिया क्वेश्चन, बन गए फॉर्मेट्स? Sir, written the question and made the format of purchase book. ओके, बाकी बना लो फॉर्मेट. Now done. Sir, sales book format is Yes, sir. sales return format is in. Yes, sir. बना लो बना लो. Done. Okay, good. Read the question now. Purchase 10 books from Bhavna Enterprises Delhi at the rate 20 rupees each for cash. Sir, मतलब 200 Wait. rupees हो. Wait, शुरू से पढ़ो जसकिरत. Enter the following transactions. The following transactions in subsidiary books other than cash book and general proper of Jeevan Enterprise. Stationery shop Delhi GST to be added at that 5%. Okay, first transaction. Date 2021 October 1. Purchase 10 notebooks from Bhavna Enterprises Delhi at the rate rupees 24 cash. कौन सी बुक में एंटर होगा ये? Sir, purchase book. नहीं. Everyone agrees? No, sir. Sorry, sir. It's a cash Why? transaction. Yes, it is a cash transaction, so it will be entered in cash book. But the question has not asked us to prepare the cash book, so it will not be entered in any of these books. Okay, sir. Note लिख लो. Transaction 1 is a cash transaction, hence not recorded in purchases book. Read the next one. Purchase from Bhavna Enterprises Delhi 15 notebooks at the rate rupees 20 and 25
books for rupees 3,700 at 5% trade discount. In which book will we enter this? Sir, purchase book. Sir, purchase Cheers. book. Very good. How will we enter this? वो भी बताते जाओ साथ साथ. Bhavna Enterprises Delhi, Enterprise Delhi. Bhavna Enterprise Daily account. 15 notebooks at the rate rupees 20 each. And then in the next 300. line, 25 books at the rate And rupees 3,700. तो टोटल कितना हो गया? 4,000. 4,000. less 5% trade discount. 4,000 का 10% कितना हुआ? 400. Sir, 400. So 400. half of that. 200. So 5% trade discount is 200. Yes, sir. और उसको लेस करने के बाद अब बचा अमाउंट 3,800. 1,800. Now what will we do next? So add the GST. Add GST. 5%. 3,800 का 10%. 380. 380. उसका हाफ 190. 190. 190. 190 हो गया 5%. यस. इसमें जीएसटी कौन सा लगना है? The CGST and SGST. Input Sir, CGST and input SGST. GST. तो 190 को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे. 2.5% इनपुट सीजीएसटी 95, 2.5% इनपुट एसजीएसटी 95. टोटल नाउ कम्स टू 3,990. कॉस्ट में लिखेंगे ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाला अमाउंट 3,800. इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी में 95 और टोटल में 3,990. पर्टिकुलर्स कॉलम में लाइन. Written. Read the next transaction now. Purchase from Purchase. Nitin Traders Noida 100 pens at rupees 23 each and 100 pencils at rupees 7 each. Which book? Sir, purchase Purchase. book. The purchase book. Yes. Date 10th. नितिन ट्रेडर्स नोएडा. आगे क्या लिखेंगे? Sir, 100 100 pens at the rate rate. rupees 23 each. Yes. So this comes to 2,300. $100 pencils at rupees 7 each. 700. So total is 3,000. 3,000. What next? Input IGST. Input IGST. Input IGST. 5% of 3,150. So now the amount is 3,850. 3,150. अच्छा सर प्लस करना है मुझे माइनस Cost लग रहा है यहाँ से देखने में. हाँ जी. सर यहाँ पे बहुत लाइट दिख रहा है. माइनस लग रहा है यहाँ पे देखने से. ओके.
अच्छा, IGST तो आपको पता है ऐड होता है ना, तो ऐड करेंगे 3000 में 150 तो 3150। ब्राइटनेस बढ़ा लो अपनी डिवाइस की, थोड़ी लाइट दिख रहा है तो ठीक है। कॉस्ट में 3000, IGST में 150 और टोटल में 3150, पर्टिकुलर्स में लाइन। Now read the next transaction. Sir, purchased from Nitin Traders, Noida, 100 packets of ruled sheets at the rate rupees 15 per packet. Trade discount 20% and free charges rupees 100. Garima, Yes, sir. good. In which book and how will we write? The purchase books. Date 17, Nitin Traders, Noida. 100 packets of ruled sheets at rupees 15 each. So 1500. Then 20% trade discount. 20% means 1/5. So 1/5 of 1500 is 300. Less करके कितना amount बचा? Sir, 1200. 1200. Next क्या होगा? Sir, input IGST. Yes. 5% input IGST. 5% of 1200 is 60. So now the amount comes to 1260. Then next, Freight charges. freight charges will be added finally. 100 rupees. So the amount comes to 136. 1360. Cost column में कितना लिखेंगे? 1200. Sir, 1200. Very good. 1200. IGST में 60, freight column में 100, total में 1360. Now read the next transaction. Purchase from Nalini, Delhi, 2 chairs at the rate rupees 2,900 each. So which book? So Sir, it won't be purchase. None of recorded. the given. So it won't be recorded. We will not record it. Very good. Why? So Because it is these not are a good. goods. Yes, it will not be recorded in any of these books that we are preparing. कहाँ पे रिकॉर्ड होगी? कहीं तो होगी. इनके अलावा कहाँ पर होगी रिकॉर्ड? जर्नल प्रॉपर में, ठीक है, लेकिन वो हमसे मांगा नहीं है इस क्वेश्चन में, सो वी विल नॉट रिकॉर्ड इट. Transaction 5 involves purchase of furniture, not business goods, hence not entered in purchases book. Now read the next transaction. 20 pence returned 20 to Nitin pence. Traders, Noida. 20 pence returned to Nitin Traders. So which book? Sir, purchase return.
Purchase very return. good. Yes, परचेज रिटर्न बुक में 2021 अक्टूबर 20th नितिन ट्रेडर्स नोएडा 20 पेंस। अब इसका प्राइस हमें इस ट्रांजैक्शन में नहीं दिया, तो प्राइस कैसे पता चलेगा? जी सर। कॉस्ट कैसे पता चलेगी? 20 पेंस कॉस्ट कितनी थी? यहाँ पे नितिन ट्रेडर्स जब हमने परचेज किया था, देखो परचेज बुक में देखो जो सेकंड एंट्री है सर 100 पेंस एट ₹23 ईच, तो यहां से हमें प्राइस पता चलेगा इसका। सो 20 पेंस एट ₹23 ईच, अमाउंट हो गया 460। ठीक है। और जब हम रिटर्न करते हैं तो जीएसटी भी रिवर्स करते हैं, तो 5% इस पे जीएसटी भी रिवर्स होना है। 460 का 5% 23। सो 5% इनपुट आईजीएसटी 23। इसका मतलब टोटल अमाउंट कितना हुआ? 483। यस, 483। कॉस्ट में 460, आईजीएसटी में 23, टोटल में 483, पर्टिकुलर्स में लाइन। Now read the next transaction. Sold to Mehak Delhi 10 notebooks at the rate ₹30 each and 20 books for ₹4,700 at 20% trade discount. Which book? Sir, sales book. Sales book. Sales book. Date 2021 October 21. Mehak Delhi. 10 notebooks at ₹30 each, so the amount is 300. 300. Then 20 books for ₹4,700. So total is 5,000. Then next is how much is the trade discount? 20%. 20% means 1/5. 1/5 of 5,000 is? Yes. 1,000. Sir, So 20% trade 1,000. discount 1,000, जिसे लेस करके we arrive at amount of 4,000. Then next, what will we do? The GST. GST 4,000 का 5% कितना हुआ? Sir, 200. 200। और GST कौन सा आना है इसमें? Sir, output The CGST and output SGST. Yes, output SGST. and SGST. तो 200 फर्दर डिवाइड हो जाएगा 100 ईच में। 2.5% आउटपुट CGST 100, 2.5% output SGST again 100. So the total amount is So 4,200. 4,200. very good. वैल्यू कॉलम में क्या अमाउंट आएगा? So 4,000. वेरी गुड, 4,000
CGST ST कॉलम्स में 100 ईच, टोटल में 4200, पर्टिकुलर्स में लाइन. Now read the next transaction. Sold to Shaurya Rohtak 60 pens at the rate rupees 30 each and 100 pencils at the rate rupees 10 each. Which book? Sales book. Yes. Sales book में date 24, शौर्य रोहतक 60 pens at rupees 30 each. So 60 into 30 is 1800. yes. 100 pencils at rupees 10 each. Amount is 1000. 1000. 1800 plus 1000, 2800. 800. GST कौन सा लगेगा? Output Sir, IGST. IGST. Output IGST. Very good. 5% of 2800 is 140 So rupees. 140. 140. So 5% output IGST 140. Now the total amount is 2940. वैल्यू कॉलम में कितना आएगा? Sir, 2800. 2800. यस. 800. IGST में 140, टोटल में 2940, पर्टिकुलर्स में लाइन. Now read the next transaction. $30 pencils returned by Shaurya. Which book? Sir, sales So return. sales return. Sales return book. Yes, very good. Date 2021, October 27, Shaurya Rohtak. Now again, rate is not given. तो रेट हम देखेंगे सेल्स बुक में से. पेंसिल्स किस रेट पे आई थी? 10 रुपीज ईच. सो 30 पेंसिल्स एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच, 300. जीएसटी रिवर्स होगा 300 का 5%. 15 rupees. 5% output. Yes, 5% output IGST 15. So the total amount is 315. 315. वैल्यू कॉलम में 300, इन आउटपुट IGST डेबिट में 15, टोटल में 315, पर्टिकुलर्स में लाइन. Now read the last transaction. Sold to Shaurya Rohtak 20 pens at the rate rupees 30. Very good. Which book? Sales book. Sales book. Sales book. Yes. 31. Shaurya Rohtak. 20 pens at rupees 30 each. So amount is 600. 600. और इस पर लगेगा आप GST 5%. कितना हुआ 600 का? 30 rupees. 30. So 5% output IGST 30. Total amount is 630. 630. कॉस्ट में 600, IGST में 30, टोटल में 630, पर्टिकुलर्स में लाइन.
अब टोटल कर दो तीनों बुक्स में। परचेजेस बुक में देखो कॉस्ट का टोटल कितना आ रहा है, So 8,000. यस 8,000, CGST 95, SGST 95, IGST 210, फ्रेट चार्जेस 100, टोटल 8,500। डेट कॉलम में 31। सेल्स बुक में वैल्यू कॉलम का और टोटल कॉलम का टोटल बताओ। Sales book वैल्यू 7,400. 7,400, यस वेरी गुड। 400. CGST 100, SGST 100, आउटपुट IGST 170, टोटल इज 770। परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न में तो एक एक ही अमाउंट है सारे कॉलम्स में, तो वही टोटल हो जाएगा। डेट सब में 31 आ जाएगी। Do you have another class after this one? सर ट्यूशन किया है उसके बाद बस। नहीं, स्कूल की क्लास की बात कर रहा हूँ। अभी स्कूल की क्लास कोई है इसके बाद? सर नहीं है ना, तो 5 मिनट और लगा के थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, देन वील वाइंड अप। यहां तक लिख लिया? Any doubts in entering in any of the subsidiary books? Anyone? No? No, sir. Okay, good. अब थोड़ी सी चीजें और डिस्कस कर लेते हैं बस 4-5 मिनट में। जर्नल प्रॉपर, ऑल्सो कॉल्ड जनरल जर्नल, कैश बुक एंड अदर सब्सिडरी बुक्स। अदर सब्सिडरी बुक्स मतलब परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, दीज आर कॉल्ड स्पेशल जर्नल्स। कैश बुक और अदर सब्सिडरी बुक्स को क्या कहते हैं? Special journal. यस, और जर्नल प्रॉपर को जनरल जर्नल भी कहते हैं। The transactions that cannot be recorded in any special journal that are being maintained, कैश बुक और अदर सब्सिडरी बुक्स में जोन सी बुक्स भी फॉर्म मेंटेन कर रही है, तो उनमें से किसी में भी जो ट्रांजैक्शंस नहीं आएंगी वो एंटर होंगी जर्नल प्रॉपर में। ठीक है, तो कौन कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं जो जर्नल प्रॉपर में आएंगी? मतलब सपोज फर्म कैश बुक भी बना रही है, बाकी सारी सब्सिडरी बुक्स भी बना रही है, तो फिर ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शंस रह जाएंगी जो इनमें से किसी में भी नहीं आएंगी? कैन यू थिंक ऑफ? Outstanding, accrued. Bad debt. Yes, yes, very good. Advance income. Accrued Yes, income. very good. So Prepaid still many transactions can, हाँ बिल्कुल, so many transactions can be there. फर्स्ट इज ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री किस लिए होती है? पिछले साल के बैलेंसेस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। ये हमने डिस्कस किया था पहले भी, आई थिंक। Yes. तो वो जर्नल में आएगी। क्लोजिंग एंट्रीज जर्नल में आएंगी जब हम ईयर के एंड में जितने भी हमारे एक्सपेंसेस, लॉसिंग, इनकम, गेन है, उन्हें ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर कर देते हैं, तो उनकी क्लोजिंग की एंट्रीज भी जर्नल प्रॉपर में आती हैं। देन ट्रांसफर एंट्रीज, कुछ अकाउंट्स का बैलेंस हम दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे ईयर के एंड में जनरली ड्राइंग्स का बैलेंस हम कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं, तो वो एंट्री भी जर्नल में आएगी। देन एडजस्टमेंट एंट्रीज, क्लोजिंग स्टॉक के लिए हम एंट्री क्या करते हैं, याद है? स्टॉक अकाउंट डेबिट टू purchases परचेजेस अकाउंट। यस,
So this is an adjustment entry. This will also come in journal proper. All outstanding, accrued, advance, these entries will also come in journal proper. ठीक है, एडवांस में जहां पेमेंट हो गई है वो नहीं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और एक्रूड इनकम्स वाली एट जर्नल प्रॉपर में आएंगी. देन रेक्टिफाइंग एंट्रीज, ये बाद में एक चैप्टर भी आएगा हमारा जो हम डिटेल में पढ़ेंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स. अगर कोई एरर हो जाता है उसको रेक्टिफाई करने के लिए भी कई बार जर्नल एंट्री पास करनी पड़ती है. दैट एंट्री विल ऑल्सो कम इन जर्नल प्रॉपर. Then miscellaneous other entries also. For example, purchase of an asset on credit, writing of bad debts, etc. Any doubts up to here, anyone? So No, don't sir, we have but to do any whatsoever question? Be a bit loud and Excuse repeat what you me, sir. said. Yes. Sir, do we have to do any question of journal proper? Yes, you have to do journal. जब हुआ था आपका journal का topic हमारा complete, I had told you to do all questions of journal from the book. ठीक है, जो जो टॉपिक कंप्लीट होता जाता है उसके सब क्वेश्चंस करते जाया करो बुक में से, एनसीईआरटी में से. Sir, I'm talking about journal proper. ये जर्नल प्रॉपर वही है जो जर्नल में हमने किया था ना, वो सारे क्वेश्चंस आपने चाहे बुक क्वेश्चन में जर्नल लिखा हो चाहे जर्नल प्रॉपर लिखा हो, वो सारे क्वेश्चंस करने हैं. यस. नाउ यू विल अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस ऑफ अदर सब्सिडरी बुक्स फ्रॉम द बुक. ओके. okay, sir. This topic of other subsidiary books is complete, and in place of next class, that is tomorrow, we will have a class test from cash book and other subsidiary books. Okay. Seriously. Okay, sir, thank you. Thank you, sir. Thank you.